ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ورنگل شہر کے ترقیاتی کاموں کو مقررہ وقت پر مکمل کریں، سیکریٹریٹ میں پی سرینیواس ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ نااہل وزیر اعلیٰ کو تلنگانہ عوام کے سر پر لا کر بٹھا دیا گیا، ہاتھ کے نشان کو دیکھ کر عوام پریشان، کے ٹی آر کا راہل گاندھی کو مکتوب۔ سیکریٹریٹ میں ملازمین کی حاضری کے لیے نئے نظام کا آغاز، چہرہ شناسی اعلیٰ نصب، چیف سیکریٹری کے احکامات۔ طلباء کی لڑائی کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش، زعفرانی کارکنوں کی شرنگیزی۔ شمشیر گنج کے خانگی اسکول میں افسوسناک واقعہ، اسکول انتظامیہ کی کوتاہی پر بھی اٹھے سوال۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹوری چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامر ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، crafted just for you، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر مال سرینیواس ریڈی نے کہا کہ ورنگل شہر کے ترقیاتی کاموں کو مقررہ وقت پر مکمل کریں۔ سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ریاستی وزیر کونڈا سریکھا کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ اجلاس میں ریاستی وزیر پی سرینیواس ریڈی نے ہر پروجیکٹ کی DPR کو تیار کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ حکومت نے جو وقت مقرر کیا ہے اس کے مطابق کام کو مکمل کیا جائے۔ ورنگل شہر کی تعمیر ہونے والی رنگ روڈ کو قومی شاہراہ کو مربوط کرنے پر توجہ دیں۔ اس پروجیکٹ کے اراضی حصول کے کام کو جنگی خطوط پر کیا جائے۔ ایئرپورٹ تعمیر کے کاموں کے لیے اراضی حصول کے کاموں کو جلد سے جلد تجویز تیار کریں۔
वजीर मौसूफ ने कहा कि भद्राकाली चेरू की सफाई का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, अहमियत वाले कामों को पहले मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इजलास में बलदी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, हाथ के निशान को वोट देने पर नाअहल वजीर आला को तेलंगाना के सर पर लाकर बिठा दिया गया। राहुल गांधी को केटीआर ने खुला मकतूब रवाना करते हुए कहा, दिल्ली को मिलने वाली इत्तला के अलावा आपने जो वादे किए थे उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। तेलंगाना के अवाम ने भरोसा करते हुए इख्तियार दिया। अवाम को परेशान करने के अलावा उसकी पहचान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केटीआर ने कहा, डिक्लेरेशन का कोई अता पता नहीं है, 420 वादों का भी कोई पता नहीं है। रियासत का हर तबका परेशान है। इंदिरम्मा राज्यम का मतलब तमाम तबकात और शोबे बहरान का शिकार हो चुके हैं। केटीआर ने कहा कि 10 साल में गरीब अवाम को तब्दील करने का काम है। हमने कभी नाम तब्दील नहीं किया। उनका कहना था, हम अगर चाहते तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के मुजस्समे रियासत में दिखाई नहीं देते। अगर निचली सियासत पर रोक नहीं लगाई तो मुस्तकबिल में यही होगा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों और मुलाजमीन की हाजिरी के लिए एक नए निज़ाम को मुतारिफ करा गया है। इसके तहत उनके चेहरे की शिनाख्त का आला हर महकमे व शोबे में लगाया गया है, जिससे उनके दफ्तर आने व जाने के औकात रिकॉर्ड होंगे। इस नए निज़ाम को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का नाम दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की तरफ से तमाम महकमेजात और शोबेजात के सुदूर स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज और स्पेशल सेक्रेटरीज को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। मुस्तकिल मुलाजमीन के अलावा आउटसोर्सिंग पर मुलाजमत करने वालों पर भी इसका इतलाक होगा। यह नया निज़ाम जुमेरात से मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन जुमे तक हाजिरी शख्सी बुनियाद पर हो सकती है। इसके बाद कोई शख्सी हाजिरी नहीं होगी, बल्कि चेहरा शनासी आला ही हाजिरी लेगा। सेक्रेटेरिएट के तमाम दाखिली मुकामात पर इस आले को नस्ब किया गया है। अगर किसी महकमा या शोबे में चेहरा शनासी आले के बारे में कोई मसला हो तो उसके लिए मुताल्लिका ओहदेदारों के नाम और फोन नंबरात दिए गए हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद ने कहा कि मेडिगड्डा प्रोजेक्ट पर रेवंत रेड्डी क्यों फैसला नहीं ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, एसआरडीपी फेज 1 और फेज 2 से यासंगी फसल को पानी नहीं दे सकते, इसलिए इस बार काश कम करने की ओहदेदारों ने राय दी। यह मुकम्मल रियासती हुकूमत की नाकामी है। किसानों के लिए यासंगी फसल काफी अहमियत की हामिल होती है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के हाथों में इख्तियार है, जो फैसला लेगी उस पर अमल किया जाएगा। हजारों टीएमसी पानी समंदर के हवाले हो रहा है। उनका कहना था कि हजारों टीएमसी पानी मेडिगड्डा बैरज से गुजरने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। ये केसीआर को बदनाम करने की कोशिश है। मेडिगड्डा प्रोजेक्ट में शिगाफ फंडने की बात पर कांग्रेस पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని రిపేర్ చేయాలని చెప్పి చట్టంలో ఎక్కడ లేదు. ఎందుకు మరి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఆ పేరు చెప్పి దీన్ని ఆపుతున్నది? ఎందుకు ఆపుతున్నది? ఎందుకు రిపేర్లు వెంటనే చేపట్టలేదని నేను ప్రశ్నించదలుచుకున్నాను. ప్రభుత్వాలు వస్తుంటాయి, రాజకీయ పార్టీలు అధికారంలో గెలుస్తారు, ఓడిపోతారు. కానీ ఇలా లక్షలాది రైతులకి మరి గోదావరి నది జలాలు ఇవ్వాలని చెప్పి సంకల్పంతో కట్టుకున్నటువంటి మరి మేడిగడ్డ బ్యారేజు, అన్నారం బ్యారేజు, సుందిల్ల బ్యారేజ్లో మొన్న 1000 టీఎంసీలు నీళ్లు ప్రవహించింది. గోదావరి నది ప్రాణహిత నది ద్వారా వచ్చినటువంటి నీళ్లు ఇటు సుందిల్ల, అన్నారం, మేడిగడ్డ గేట్లు తెరిచి बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा, रेवंत रेड्डी का हाल उस गिद्ध की तरह है जो 100 चूहे खाकर तीर्थ यात्रा को चला गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रेवंत रेड्डी एक बार भी जय तेलंगाना नहीं कहा, जयकारों को फूल पेश नहीं किए, ना तहरीक में शामिल हुए। 9 दिसंबर को तेलंगाना तश्कील के अमल का ऐलान केसीआर की भूख हड़ताल की वजह से हुआ था।
रेवंत रेड्डी ने उसका जिक्र तक नहीं किया और ये तेलंगाना के जहदकारों की तौहीन है। उस वक्त तेलंगाना तहरीक के साथ धोखा किया था, तहरीक के साथ दगाबाजी की गई। तेलंगाना की तारीख को कोई मिटा नहीं सकता और ना ही केसीआर के विखार को घटा सकता है। सरकारी तौर पर तेलंगाना तल्ली मुजस्समा नहीं लगाया गया, मज़हका खैस है। 2 जून 2015 को संगारेड्डी कलेक्टर में मुजस्समे की नकाब कशाई की गई। इसके अलावा यादगार जहदकार का इफ्तिताह किया गया। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने जो तब्दीली लाई है, टीजी और मुजस्समा तब्दील करना है। దయతలిచి తెలంగాణ ఇచ్చేది ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అసలు తెలంగాణను ఆంధ్రలో కలపది కలిపిన 69 ఉద్యమంలో ప్రజల తీర్పును అనుసరించి అప్పుడే తెలంగాణ ఇచ్చేది ఉండే. పోనీ 2004లో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పుడన్నా తెలంగాణ ఇచ్చేది ఉండే. ఎప్పుడు ఇచ్చిండు మీరు? కేసీఆర్ దీక్ష చేసి విద్యార్థులు, ప్రజలు, సమస్త తెలంగాణ ముక్కోటి ప్రజలు రోడ్ల మీదకి వస్తే ఇంకా తప్పని పరిస్థితుల్లో ఇచ్చింది. దీని ఎట్లా ఉందంటే సోనియా గాంధీ గారు దయతలిచి ఇచ్చింది అని రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడే మాటలు వింటే నాకు ఒకటి గుర్తొస్తా ఉంది. ఇక నెహ్రూ గారు, గాంధీ గారు స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేయలేదు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు దయతలిచి పోతూ పోతూ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టి ఇచ్చింది అన్నట్టు ఉన్నది రేవంత్ రెడ్డి చెప్పే మాటలు. ఇక నెహ్రూ, గాంధీ పోరాటం లేకపోతేనే స్వాతంత్రం వచ్చిందా మన దేశానికి? బ్రిటిష్ వాడు దయతలిచి గిట్ట స్వాతంత్రం ఇచ్చిపోయిందా? ఇక్కడ కూడా కేసీఆర్ పోరాట ఫలితం, తెలంగాణ ప్రజల పోరాట ఫలితం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది తప్ప ఎవరో దయతలిచి తెలంగాణ ఇవ్వలేదనేటువంటి విషయాన్ని వారు గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది. అసలు తెలంగాణ కోసం రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కనాడన్నా నువ్వు రాజీనామా చేసినావా? జై తెలంగాణ అన్నవా? అదే అప్పుడు జేఏసీ చైర్మన్గా ఉన్న కోదండరామ్ గారు అందరు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయాలంటే వెన్ను చూపి పారిపోయిన చరిత్ర రేవంత్ రెడ్డిది. तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी वेंकटेश्वरुलु ने कहा कि तेलंगाना अवाम से किए गए वादों को पूरा न करते हुए कांग्रेस हुकूमत मखरूज हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हर तबके को रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने धोखा दिया है। कांग्रेस हुकूमत कमीशन सरकार में तब्दील हो गई है। 1 साल मुकम्मल होने पर जो तकारीब मुनक्किद की गई, उस पर कितना खर्च किया गया उसका भी किसी को पता नहीं। करोड़ों रुपए खर्च करके जश्न मनाने का अख्तियार किसने दिया था? अवाम से किए गए वादों को तो पूरा नहीं किया गया और जश्न मनाना गैर जरूरी था। सहाफियों पर जो हमला उसकी बीजेपी मजम्मत करती है। मसला अगर है तो कानून के मुताबिक हल करें। मोहन बाबू के मामले में सहाफियों पर हमले के वाक़े के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। शमशीरगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े खानगी स्कूल में बच्चों की लड़ाई को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश करते हुए इश्तियालंगेज नारे लगाए गए। तफसीलात के मुताबिक मंगल को चैतन्या स्कूल में 2 तलबा में झगड़ा हुआ। 4 शंबे को बाज अफराद स्कूल में दाखिल हुए और शरंगेज नारे लगाते हुए तलबा को मुबैना तौर पर ज़ुदोकोब किया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर सरपरस्तों की बड़ी तादाद भी स्कूल पहुंच गई और अपने बच्चों की सलामती को लेकर एहतजाज किया। दूसरी तरफ डीसीपी सौजन स्नेहा मेहरा और दूसरे मुतालिका पुलिस ओहदेदार भी स्कूल पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि बच्चों की लड़ाई से ये वाक़या पेश आया। उनका कहना था, अगर बर वक्त स्कूल इंतजामिया इस मसले से निपटकर बच्चों की काउंसलिंग करता तो इस वाक़े को टाला जा सकता था। डीसीपी स्नेहा मेहरा से जब यह पूछा गया कि बाद शरपसंदों की तरफ से स्कूल में JSR के नारे लगाए गए और शरंगेजी की कोशिश की गई, इस पर डीसीपी ने बताया कि स्कूल के CCTV का जायजा लिया जा रहा है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्नेहा मेहरा का कहना था, बच्चे मासूम होते हैं, अगर वक्त पर उनको समझाया जाए और काउंसलिंग की जाए तो ऐसे वक्त को यानी कि ऐसे हालात को टाला जा सकता है। डीसीपी ने बताया कि स्कूल इंतजामिया की तरफ से भी कोताही हुई है, उसका भी जायजा लिया जाएगा। वाज़ेह है कि जिस तरह से माहौल को कशीदा करने की कोशिश की गई, उससे सरपरस्तों में एक तरह की बेचैनी देखी गई और जो लिबास पहनकर लोग यहाँ पर आए थे उनको देखकर भी माहौल यहाँ पर कुछ देर के लिए कशीदा था, क्योंकि यहाँ पर शरंगेज नारे लगाए गए। कल एक वाक़े को लेके 2 बच्चों में छोटी लड़ाई हुई, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे, एक हिंदू बच्चा था और एक मुस्लिम बच्चा था।
लड़ाई आपस में बच्चों की स्कूल रिलेटेड मैटर में जो होती रहती है, छोटी मोटी लड़ाई थी, लेकिन उस वाक़े में आज सुबह स्कूल में कुछ बाहर से लोग आके इकट्ठे हो गए और उन्होंने स्कूल में थोड़ा हंगामा किया और कुछ बच्चों के खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए बोला। बट इमीडिएटली वहाँ पे SHO छतरी नाका, ACP छतरी नाका और कुछ देर में मैं भी वहाँ जाके दोनों साइड के पेरेंट्स से बात किए और इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी किए। देखिए, समाज में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दोनों किस्म के लोग होते हैं। जो कि छोटा इंसिडेंट होता है बच्चों के बीच का, जैसे इस केस में झगड़ा है, उसको बढ़ा चढ़ा के अपना दो समुदाय के बीच भेदभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उन पर झगड़ा कराना चाहते हैं। पर आप भी जानते हैं कि मीडिया भी और पुलिस भी और समाज भी ऐसे किसी भी तरीके के भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं करता है, उनको इनकरेज नहीं करता है। और डेफिनेटली जो भी इस तरीके के बाहर से आके जो तत्व हैं और उनके जो लीडर्स हैं मेन, उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नामपली पुलिस स्टेशन के हदूद में पेट्रोल टैंकर में आग लगने से सनसनी लिखी गई। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की दोपहर घटकेसर से आया टैंकर HP पंप पर पेट्रोल अनलोड करने के लिए पहुंचा था। टैंकर पंप पर रखकर ऑटो ड्राइवर यहाँ आने के बताया जाता है कि यहाँ पर ड्राइवर कहीं चला गया। अचानक टैंकर से धुआं निकलने लगा और आग फैलने लगी। मुकाम वाक़े पर मौजूद दूसरे ड्राइवर मोहम्मद गौस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए टैंकर को पंप से पीछे हटा दिया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर दिया गया। मुकाम वाक़े से गुजर रहे ACP ट्रैफिक ने भी आग बुझाने और हालात को काबू करने में अहम रोल अदा किया। अगर टैंकर को पंप से नहीं हटाया जाता तो एक बड़ा वाक़या पेश आ सकता था। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। साबिक़ रियासती वजीर और रुकन असम्बली T हरीश राव ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को तब्दील करने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया है। संगारेड्डी में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए उनका कहना था, साबिक़ में मुल्क में कांग्रेस और गैर कांग्रेस पार्टियों ने आज़ादी के बाद मुल्क में हुक्मरानी की, मगर किसी ने भी भारत माता के मुजस्समे को तब्दील नहीं किया, जिसे अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस मौके पर हरीश राव ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा मुख्तलिफ स्कीमों और तहरीक तेलंगाना रियासत के बारे में भी इजहार ख्याल किया। कंटोनमेंट अहदेदारों और सिकंदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर गैर कानूनी तौर से कारोबार करने वालों को बर्खास्त करवा दिया। इस मौके पर लाल बाजार से तिरमलगिरी के इलाके में सड़क की जानिब से फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को निशाना बनाया गया। इसके लिए JCB का इस्तेमाल किया गया। फुटपाथ पर कारोबार किए जाने से फुटपाथ पर पैदल चलने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा सड़क हादसात भी पेश आ रहे थे। इस मौके पर DCP ट्रैफिक राहुल हिगड़े, ACP ट्रैफिक शंकर राजू, सर्कल इंस्पेक्टर मधु बाबू के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। काली खबर के इलाके में एक शख्स ने नशे की हालत में RTC बस कंडक्टर पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अब्बास नामी शख्स RTC बस में सफर कर रहा था, जो सिकंदराबाद से चार मीनार की तरफ जा रही थी। उसने कंडक्टर पर बदतमीजी का इल्जाम लगाते हुए हमला किया। बस के मुसाफिर ने अब्बास को बस से उतार दिया, जिस पर उसने बरहम होकर पत्थर मारकर बस के शीशे तोड़ दिए। बाद में मुसाफिर ने अब्बास को मीर चौक पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। साउथ वेस्ट टास्क फोर्स और आसिफ नगर पुलिस ने ममनुआ मेफिटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन फरोख्त करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि जिस्मानी नशोनुमा के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते थे। सेहत के माहिरीन ने इसे मोहल्लिक करार दिया है। पुलिस ने 217 इंजेक्शन जब्त किए हैं। इसकी मालियत 3,15,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने जिम ट्रेनर रशीद खान के अलावा दूसरों को भी गिरफ्तार किया है। सूर्यापेट के पेन पहाड़ मंडल के दूसा पहाड़ देहात में सिलेंडर फटने के वाकये में 6 अफराद झुलस गए। सिलेंडर के फटते ही झोपड़ियों में आग लग गई और अफरा तफरी देखी गई। मुतासिन बशमूल कमसिन बच्चों की चीखो पुकार भी सुनी गई। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल।
آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال ٹولی چوکی حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ٹولی چوکی حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ اسکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی حیدرآباد۔ ورنگل شہر کے ترقیاتی کاموں کو مقررہ وقت پر مکمل کریں۔ سیکریٹریٹ میں پی سرینیواس ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ نااہل وزیر اعلیٰ کو تلنگانہ عوام کے سر پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ ہاتھ کے نشان کو دیکھ کر عوام پریشان، KTR کا راہل گاندھی کو مکتوب۔ سیکریٹریٹ میں ملازمین کی حاضری کے لیے نئے نظام کا آغاز، چہرہ شناسی اعلیٰ نصب، چیف سیکریٹری کے احکامات۔ طلباء کی لڑائی کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش، زعفرانی کارکنوں کی شرنگیزی۔ شمشیر گنج کے خانگی اسکول میں افسوسناک واقعہ، اسکول انتظامیہ کی کوتاہی پر بھی اٹھے سوال۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔